Okay, who No, have ma'am. their assignment? Everything is clear till now. Okay. Okay, Yuvraj. What about others? No, ma'am. Okay. Who have submit their assignment? जिन्होंने सबमिट नहीं करा था और जिसका पीछे था, किसने सबमिट कर दिया है और किसने नहीं करा है? जस्ट ड्रॉप योर डिटेल्स इन योर chat box. Yes. एक्सक्यूज मी मैडम। Yes, Pooja. मैडम ये मेरा बुक मार्किंग वाला अभी पेंडिंग चल रहा है, पर मैंने ना उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। 26 तक पहुंच गई हूँ मैं। बस दो Okay. चार और बची है, मैं उसे आज कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतना जल्दी भेज देना, क्योंकि ठीक। काफी लेट हो चुका है ऑलमोस्ट। आई नो मैम। मैम उसमें ना एक चीज और है जो मुझे दिक्कत आ रही है कि मैम बुक मार्किंग बहुत सारे टाइप से जिसमें हो जाती है, पर हाँ जी। उसमें ना लिंक शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो बाकी सब अगर मैं उसको ऊपर जो फॉर्म में लिंक आती है, अगर वो कॉपी करके अगर डालती हूँ तो वो अगर लॉगिन करके देखोगे तो दिखेगा। बट अगर अपन इनकॉग्निजेंट मोड में डालोगे ना तो वो शो नहीं होगा, फिर वो लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है। वो आपको ना वो चेक वो करना चलता पड़ेगा, है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि लाइव लिंक नहीं मिलता है, तो यू विल हैव टू चेक इट इन योर प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाके आपको वहां पे लिंक्स मिल जाएगा। तो मेरा वो चल जाता है कि अगर जैसे लाइव लिंक अगर ऐसे नहीं खुल रही है, ओपन हो रही है, बट अगर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के तो वो शो हो रही है, तो वो चल जाती है क्या कि अपने को वही लिंक चाहिए जो इनकॉग्निजेंट मोड में खुल रही हो, हाँ। बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के। जी जी जी। एक बार आप मेरे को क्लास के बाद में टेक्स्ट कर देना, सो आई विल अटेंड यू ऑन दैट। ओके। श्योर मैम। सो व्हाट अबाउट अदर्स? Parminder said he uploaded all the assignments. What about others? Asna, Tanu, Niklesh, Kusum. Ma'am, I have completed all the tasks. Okay. Good. Niklesh. Ma'am, I have submitted 3 assignments. I have one left, and that is blog bookmarking. Okay, sure. Do it ASAP before the deadline. Yes, ma'am. Asna, Niklesh. Actually, I also one assignment left, means last block submission. Others- Okay, great. What about Niklesh, Yuvraj, and Aparna? Ma'am, Nikhilesh this side. Yes, I have Niklesh. submitted the keyword research and social media bookmarking. Oh, Ma'am, I have submitted the keyword research. The SEO blogging is pending. I will submit by today or tomorrow morning. okay, sure. If anyone faces any issues, you can just drop DM us. We'll answer to them. Give me a minute in advance. Give me. So we'll be do practically like what is on page SEO. Okay, I'll just show you the key कि कौन से key patterns है जो आपको while doing on page SEO you have to just keep in your mind. Okay, I'll just share my screen.
So is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So we'll be doing it today, what like search engine optimization, like what is on page SEO, ठीक है? On page SEO के अंदर में क्या क्या आता है and how to do it, I will show you. Like what is on page SEO? On page SEO refers to the optimization of individual web pages to improve your search engine rankings and attract organic traffic. Okay. It involves optimizing various elements on a website to make it more relevant or valuable for both users and the visitors who are visiting to your websites. Okay. And the search engine also. The main goal is to ensure that the content is easily understood by search engines. अगर सर्च इंजन का बोर्ड आपके वेबसाइट पे आता है तो आपका कंटेंट क्या है वो इजीली रीडेबल होना चाहिए गूगल बोर्ड्स के लिए एंड इट प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव experience for a visitors. So what are the key components of on-page SEO? We'll just go through that. Keyword research, which we have completed in last class, as you are all aware about the keywords, like identify relevant keywords related to the content of the page using tools like Keyword Planner, Ahrefs, or SEMrush, and the find keywords which is like balance for search volume and relevance. जो आपकी वेबसाइट की इंडस्ट्री नीश हो गया तो उससे रिलेवेंट आपको कीवर्ड सर्च करने होते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर का आपने यूज करा, ठीक है, और हमने एक्सटेंशन का भी यूज करा था जो कौन सा था, या कीवर्ड सर्च। So these are the keyword research tools which you can use for keyword research. Okay. The second one is title tags. तो title tags कौन से होते हैं? Craft a concise and descriptive title tags which includes your keyword जो आपकी वेबसाइट पे होते हैं, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आपको शो होते हैं। जैसे I'll just type digital marketing trainer. जैसे मैंने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझे चाहिए, ठीक है, तो व्हाट इट विल शो इज, जैसे यहाँ पे अपग्रेड का आ रहा है और यहाँ पे क्राफ्टशाला का भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइटल टैग। टाइटल टैग्स के अंदर आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या आ गया, ये आपका आ गया वीक। So these are the title, meta title and the meta description, which includes your keyword also. जैसे यहाँ पे है नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा क्या हो गया, ये मेरा कीवर्ड हो गया। इसके अंदर में जैसे यहाँ पे शो हो रहा है वीक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट 1000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा कीवर्ड है। मेरा कीवर्ड यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा है। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में इन वेबसाइट पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो अगर कोई आपकी रिलेवेंट कीवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च करता है तो वहाँ पे आपके मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड्स हैं, तो यूजर कैन इजीली attract to that meta title and the meta description and easily go to your website and visit your website and your services. So these are the meta titles and the meta descriptions. Just go with others. Title tags and meta description, which I have told you. कि जो आपका main keyword है, which has to be included in your meta titles and meta. तो मेटा टाइटल है, इसकी आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 to 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इट शुड इंक्लूड योर 150 to 160 कैरेक्टर्स, नॉट मोर देन दैट। अगर 160 से 170 अगर आपका ज्यादा होता है तो वो वहाँ पे प्रॉपरली गूगल सर्च इंजन पे नहीं शो करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कैरेक्टर्स मेन डिफाइंड है उसी के अंडर में ही आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट पे ऐड करोगे। And the fourth is header tags. Like use header tags to structure the content. The H1 tags should typically include in the main keyword and represent the main heading of the web page. So H1, H2, H3 ये main होता है हमारा H6 तक। H1 we can use only at a one time in our website or a web page, and H2 you can use more than 8 to 10 times in your website. तो जैसे ये स्टूडेंट हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया,
So this is our student on website. Here you can see the H1 tag, your success is our commitment. This is the H1 and the these are the description of that particular H1. And here are H2, what we can define is as we are conducting master class, so we can define it as H2 कि जो भी हमारे मास्टर क्लासेस है वो यहाँ पे विजिबल है, तो ये H2 टैग्स में आगे ऐसे ही आप H3 वगैरह यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। मैक्सिमम आपको H1 एंड H2 पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मेन हमारा वही होता है, बाकी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। And fifth is URL structure, like create SEO friendly URLs that are easy to read and contain main keyword. Avoid using complex URLs with unnecessary parameters. URL structure SEO friendly कैसे आप वो करोगे, जैसे ये मेरा होम पेज है, होम पेज बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमने अदर यूज नहीं करा है, जैसे मैंने एंगुलर पे सर्च करा तो यहाँ पे इंटर्नशिप एंड एंगुलर इट इंक्लूड्स माय कीवर्ड्स आल्सो। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर में इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो इंटर्नशिप एज इन हमारा कीवर्ड हुआ, तो वो हमारे यहाँ पे यूआरएल पे भी विजिबल है। तो अगर मैं कोई और कोर्स भी यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, ये भी मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो इंटर्नशिप एंड एंड्रॉयड रिएक्ट नेटिव, so these are all the SEO friendly URL. If I search for like any other, give you like तो सारे हमारे यहाँ पे SEO friendly URLs हैं। If I like search anything, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च करूँ, give us a 1 minute guys. So as I was saying about the URL structure कि SEO friendly कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे शो करा आपको कि हर एक जो भी हमारे courses हैं, which are the courses like cyber security, AIML, whenever I am opening this URL, it shows like यहाँ पे hyphen, ठीक है। It means that our URLs are SEO friendly. If I'm like opening any other website, here you can see after college, it shows the question mark and like percentage and the numbers. It should not be added in your URL. It is like considered as not SEO friendly URLs. So आपको make sure करना है कि आप percentage और ये numbers you will not use, either use it as a hyphen. अगर कुछ भी आपका जैसे training and internship and in AI and ML है, तो मुझे ये ही as in URL use करना है, तो what I'll use is internship hyphen in hyphen AI hyphen ML. So these are considered as a URL SEO friendly URL. So मैम ये URL चेंज कैसे करते हैं? चेंज आप जब कोई भी
आप अपने वेबसाइट पे बेसिकली क्या है निखिलेश, इन सबकी फाइल्स होती हैं, जो भी हमारे पेजेस होते हैं सबकी फाइल्स होती हैं। जो फाइल्स आप नेम सेव करते हैं उनका हमें नाम इस तरीके से देना चाहिए। जो हम फाइल सेव कर रहे हैं उसमें लिखेंगे इंटर्नशिप -in-ai-ml। ओके, तो ये फाइल जब हम अपलोड करेंगे अपनी जो भी हमारी वेबसाइट की रूट फाइल होती है, डायरेक्टरी फाइल होती है, जहाँ से सारे पेज स्क्रॉल होते हैं, तो वहाँ पे ये इसी तरीके से यूआरएल हमारे बन जाते हैं। तो सर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मेरा एक वेबसाइट है। ओके, मैं इसके बाद में आपको एक मैं वर्डप्रेस पे दिखाता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। So, sixth point is keyword placement. Place the main keyword strategically throughout the content, including the first para, headings, and naturally within the body of the text. जैसे ये मैंने कोर्स ओपन करा, ट्रेनिंग इंटर्नशिप इन ANML। यहाँ पे जो भी कंटेंट है, लाइक यहाँ पे आप यू कैन आल्सो सी दिस, डाइव इनटू एक्सीलेंस, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, करियर गाइडेंस, इंटर्न्स, लाइक यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट के अंडर में आपको क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे ANML मेरा मेन कीवर्ड है, इंटर्नशिप इन ANML, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगी। तो यहाँ पे जो भी पैराग्राफ होगा या जो भी पैरा मैं ऐड करूंगी, तो वहाँ पे मैं अपना जो मेरा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे ऐड करूंगी। जैसे एंगुलर है, तो एंगुलर का मेरा मेन कीवर्ड है, वो सारा यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे हेडिंग है, हेडिंग में मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन एंगुलर। तो एज एन हेडिंग में आप यूज कर सकते हो इंटर्नशिप ऑन वेब डेवलपमेंट एंगुलर, ठीक है। तो हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ जो भी आप यूज करोगे वहां पे आप अपने कीवर्ड्स वगैरह ऐड करो। देन सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, तो एनकरेज सोशल शेयरिंग बाय इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया बटन्स व्हाइल सोशल सिग्नल्स मेड not directly impact rankings, but they can contribute, increase your traffic and visibility. So, आपको क्या करना है वेबसाइट पे, जैसे ये यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और ये आइकन्स भी लगाने हैं। जैसे मैंने वेबसाइट का सोर्स कोड और ऐड मतलब ओपन करा, ओपन करने के बाद व्हाट यू डू इज सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो हमें सोशल मीडिया कैसे ऐड करना है, OG टैग्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो OG टाइटल टैग्स, जो हमारे सोशल मीडिया टैग्स होते हैं वो हमें यहाँ पे लगाना होता है। जैसे इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मेरा क्या है, टाइटल है, ठीक है। OG टैग्स के थ्रू आप जितने भी सोशल मीडिया टैग्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वो सारा आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो OG टैग के थ्रू। देन आप अगर क्या करोगे, जो आप वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपने कॉपी करा, इफ यू आर शेयरिंग इन योर सोशल मीडिया लिंक, जैसे मैं फेसबुक पे शेयर करूंगी, कहीं पे भी शेयर करूंगी, तो वहां पे क्या होगा, एक रिव्यू ऑप्शन आएगा आपका, तो उसके थ्रू आपका वेबसाइट का विजिबिलिटी, अगर कोई यूजर सर्च करता है तो विजिट करेगा उस लिंक पे, तो वो हमारे सीधा वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। So then next is content quality, like create high quality, informative and engaging content which should relevant to your user query, answer their questions and provide value, like longer in depth often performs well in search engines. जो आपका content है वो quality होना, high quality होना चाहिए, so that if any users can search your search query in your search engines, so easily आपकी website visible हो, rankings search engine पे rankings आपकी दिखेगा, ठीक है।
इंटरनल लिंकिंग आप कैसे करोगे? लिंक टू अदर रेलेवेंट पेजेस विद इन योर वेबसाइट. It will help your link equity, improve navigation and encourage users to explore more content. जैसे ये मेरा होम पेज है, होम पेज पे मेरा जैसे ये मेरा होम पेज है, यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करा, ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑल कोर्सेज का है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है. तो ये क्या है, मेरा एक इंडिविजुअल पेजेस भी है यहाँ पे. जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग का आपको कोर्सेज में दिख जाएगा, ठीक है, आईटी कोर्सेज के अंदर आप जाओगे वहाँ पे विजिबल है. बट मेरा होम पेज पे भी यहाँ पे विजिबल कर रखा है, ताकि अगर कोई भी यूजर, जैसे किसी को ब्रोशर डाउनलोड करना है या व्यू प्रोग्राम करना है, तो इजिली कैन गो टू दैट पर्टिकुलर यूआरएल. जैसे मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग का सर्च करा, यहाँ पे क्लिक करा, तो इट गोज टू द प्रोग्राम हाईलाइट. जो भी प्रोग्राम हाईलाइट है यहाँ पे, कोर्स का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे विजिबल है सर. यू कैन ऑल्सो गो टू दैट. मैम ऐसे ये ही बैकएंड में कैसे करेंगे? बैकएंड में ये आपका डेवलपर करेगा, ठीक है. जैसे कोई भी आपने कोर्सेज ऐड करा, तो कोर्सेज जो भी हाईलाइट्स है कोर्सेज के, वो सारे आपने ऐड करें. ऐड करने के बाद जैसे होम पेज पे आपको जो मोस्ट फेमस कोर्सेज हैं वो आपको विजिबल करना है. जैसे मैंने यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद एसीएम स्टूडेंट्स आईआईटी धनबाद, तो इसके कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे मेन होम पेज पे विजिबल है. Guys, I can show you. First, you can understand about this. Then I will show you how to you can do this. थैंक यू सर. So these are the on page SEO. जो parameters है वो आपको you have to just keep in your mind and check your website throughout this. जैसे title tags कौन से हैं, descriptions, header tags, URL structure, keyword placement easily है या नहीं है, social media integration, content quality कैसे है, internal linkings easily आपने करी हैं जो pages हैं आपके website पे. So you have to check all these things. Further, Ravi sir will take from here. Okay, guys. Now tell me, कहाँ पे आपको कोई डाउट है इसमें कुछ भी, तो आप पूछें. देन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. सर वही बैकएंड में देखना था कि कैसे वेबसाइट में H1 ऐड करते हैं, कैसे इंटरनल लिंकिंग होगी. ओके. हेलो सर. हाँ, यस. हाँ सर, वो वेबसाइट यूआरएल जो है, तो वो तो वेबसाइट जो डेवलपर है वो ही लिंक क्रिएट करेंगे ना सर, तो एसईओ लिंक क्रिएट कर सकते हैं सर. यस. क्या होता है, कई बार आपने डेवलपर को दे दिया वेबसाइट बनाने के लिए, डेवलपर ने उसको डेवलप कर दिया, ठीक है, हाँ पेजेस भी उन्होंने क्रिएट कर दिए, बट जी. आपका जो यूआरएल है वो डेवलपर ने अपने मर्जी से बना दिया, ठीक है. हम्म. डेवलपर को एसईओ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ डेवलप करना जानता है वेबसाइट को. तो वहां पे ठीक है सर. आपको उनको गाइड करना पड़ता है कि हमारा जो यूआरएल है वो इस तरीके से होना चाहिए, हमारे कीवर्ड्स जो है इसमें प्रॉपर फिट होने चाहिए, ठीक है. तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हम वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे पेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे अपने कीवर्ड्स भी इंक्लूड करते लिंक चेंज हो सकता है सर, यूजर फ्रेंडली लिंक चेंज कर सकते हैं हैं. लिंक वेबसाइट आप बनने चेंज के कर बाद. सकते लिंक आप चेंज कर सकते हो, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है. अच्छा. आपको वो भी चीजें आपको क्लियर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने अपना डैशबोर्ड जो है WP एडमिन लॉगिन कर रखा है वेबसाइट का. अब यहाँ पे मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है. ये हमारा एक ठीक. वेबसाइट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोरियर के नाम से है, ठीक है. इसमें मैं कोई पेज एक क्रिएट करता हूँ, लाइक एयर फ्राइट का ही कर लेता हूँ. एड न्यू पेज पे गए हम.
अब मैं यहाँ पे इसको एक टाइटल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखें, जब मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, एक ये यूआरएल बन गया। जी ठीक है, अब जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो एक मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा विद मेरे कीवर्ड के साथ। सब मैं इस पे क्लिक करता हूँ पेज। ठीक है, मेरा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। मेरा ये कीवर्ड जो है एयरफ्राइड कोरियर यहाँ पे इंक्लूड हो गया मेरे यूआरएल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा मुझे डेवलप करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डीप मैं आपको बता दूं। अब मैं थोड़ा सा एलिमेंटर का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं तो साथ में आपको कुछ और भी चीजें बता दूंगा, अच्छा रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज को चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर आप अपलोड कर सकते हो जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो। तो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने यहाँ से इमेज चूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारी एक चीज होती है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है गाइस कि ऑल्ट टेक्स्ट हम जो हमारी जो इमेज होती है, हम इमेज के कंटेंट टेक्स्ट देना होता है जिससे गूगल का जो क्रॉलर है उस इमेज को रीड कर सके, समझ सके कि इमेज जो है वो किस बारे में है। तो यहाँ जो आपको ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ इमेज के डिस्क्रिप्शन देना होता है जिसकी लेंथ आपकी 120 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, लाइक जो भी पेज बना रहे हैं। इमेज टाइटल था। हाँ, इमेज का एक टेक्स्ट देना होता है आपको। जैसे कि जब गूगल का बोट आपकी वेबसाइट को रीड करता है ना, तो इमेजेस को भी रीड करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा दे दिया हमने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट वेरीफाइड कोरियर, इसको सेव कर देता हूँ। Hello. यस, Sir, can you please tell me in English? I couldn't understand Hindi. ओके, वेरीफाइड कोरियर, so I can type here verified courier, and now I can do H1 tag। निखिलेश आप देख रहे हैं ना, I can select H1 tag from here। जी सर। Okay, so I also use the color। So this is my H1 tag। Now press the view। As you can see, the H1 tag is visible on the screen। एयरफ्राइड You can go in the insert section। See here, H1। Okay, H1 tag में मेरा क्या है, एयर फ्राइड कोरियर। एयरफ्राइड को This is done। So इस तरीके से आप जो है अपना H1 टैग, H2 टैग जो भी आपको चेंज करना है फ्रॉम हियर यू कैन चेंज इट। सर जो गूगल क्रॉलर है वो यही H1 टैग को रीड करता है, और जब एक मिनट। कोई कमांड डालता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो वही H1 टैग से ही वो शो करता है।
बेसिकली क्या है कि आपके कीवर्ड्स को फैच करता है। ठीक है, आपने जो कीवर्ड्स है वो अगर प्रॉपर यूज किए हैं आपने तो कीवर्ड आपकी रैंकिंग करेगी। एक रैंकिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस वेबसाइट को देख रहे हो, ये वेबसाइट किस चीज के बारे में है, क्या सर्विस के बारे में है, आप देख करके बताएं। ये कुरियर सर्विस की कोरियर वेबसाइट है। सर्विस कोरियर सर्विसेज है, इसकी सर्विसेज क्या होंगी? कोरियर ये सर्विस आपका वही ट्रांसपोर्ट पैकर्स एंड मूवर्स। सी एंड फ्राइट और एयर फ्राइट। ये सारी हमारी क्या है, कोरियर सर्विसेज है इसमें। ठीक है, अब अगर कोई यहाँ पे सर्च करे, लाइक मेरा बता देता हूँ इसे। सो अब जो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे वो कोरियर सर्विसेज के गुड़गांव के बिहाफ पे ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी क्वेरी ऐसी नहीं होगी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे डिपेंड होगी। ओके, सारी सर्विसेज जो भी हमारी लिस्ट हो रही है, क्या कौन से रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कोरियर सर्विसेज इन गुड़गांव। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसकी जो कीवर्ड्स हैं वो आप प्रॉपर यूज करो। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है बेस्ट कोरियर सर्विसेज इन गुड़गांव, तो हमारा जो कीवर्ड है वो हो गया हमारा बेस्ट सर्विसेज इन गुड़गांव। तो जब कोई यूजर हमें सर्च करेगा बेस्ट सर्विसेज इन गुड़गांव कोरियर सर्विसेज, तो उनको मेरी वेबसाइट सर्च इंजन पे अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं? हेडिंग में, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हमारे पेज कंटेंट। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग में, हर जगह जहाँ पे भी हम कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ओके सर। ओके, ठीक है यस सर। सर। और कुछ तरह से सीखा? फिर ये जो लिंक्स अपनी जो रहती है यूआरएल, ये जो गूगल का जो एक एप्लीकेशन है साइट, उसके थ्रू जो कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें तो ये यूज शायद नहीं होता होगा ना? sites.google.com की बात करें हाँ ठीक। कि वहां पे भी आप इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। वो बेसिकली एक ब्लॉगिंग साइट है, वहां पे आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो पूरा प्रॉपर यूआरएल के साथ। ओके, और पेज ऐड सर तो इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग। यस सर। Hi, sir. Hello. यस यस सर। Sir, could you please teach me in English? I didn't understand this class. क्या बोलता है? Okay, thank you. So first I'll give the title, and now choosing a text editor. Okay, I can type services, about us. Now what I have to do, hyper these all pages, insert link. This is the service page. Hyper the service keyword. Check this keyword. This is about us page. Put this box. Done. Now update.
Here you can see it is all hyper with the pages. ठीक है, होम पे क्लिक करूंगा, होम पेज पे, सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, सर्विस पेज पे, अबाउट अस पे, अबाउट अस पेज पे। ठीक है, तो दीज आर इंटरनल ओके, मतलब इंटरनल कोई भी टेक्स्ट डाले और उसको एक लिंक से ऐड कर पेज के दिए साथ, टू। सेम पेज ओके के ओके साथ। ओके। Sir, can you show us how to add Instagram and Twitter icons also? Okay. I think it's camera. बेसिकली क्या होता है कि कई काफी सारी जो थीम्स होती हैं, उन थीम्स को आप सेट करते हो तो आपको ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिल जाता है, बट यहाँ पे हमारा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम। लिंक्डइन। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको जो भी आपका फेसबुक का यूआरएल है,
Right now I don't have particular social media pages, so I'll just drop social media link. So, or you can add सर इन आइकॉन्स को मैं पेज पे जहाँ चाहूँ वहां पुट कर सकता हूँ? this. Thing. You can see have you seen these icons? Yes, sir. Facebook, Instagram, and LinkedIn. I cannot see clearly, but I can implement. ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक होने के कारण क्लियर पता नहीं चल रहा। Yeah, I think maybe आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इसको। और कोई डाउट किसी को? सर मेरा एक डाउट है वेबसाइट बिल्डिंग में। जैसे हम होस्टिंग लेते हैं तो जो इंस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं सर? होस्टिंग लेते हैं तो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, जैसे AWS से अगर मैंने होस्टिंग लिया तो एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। वो इंस्टेंस क्या होता है और हम एक कितने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं? जैसे अगर मैंने एक डोमेन लिया उसके लिए एक इंस्टेंस बनाया, दूसरा डोमेन खरीदेंगे तो उसी होस्टिंग में एक और इंस्टेंस बना के चला सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है? एक्चुअली क्या है, बेसिकली कुछ कुछ होस्टिंग जो प्रोवाइडर होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं चीजें। ओके। AWS आपको ये ऑफर नहीं करता। AWS बेसिकली क्या है कि आप जितनी जो भी अलग अलग वेबसाइट्स यूज करना चाहते हो उनके लिए एक सर्वर प्रोवाइड करता है। और AWS की खासियत ये है कि वो उतना ही चार्ज करता है जितनी आपकी वेबसाइट को सर्विस की जरूरत है, सर्वर की जरूरत ओके। है। फॉर तो सर ये एग्जाम्पल जो अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो क्या होता है? फिर मैं स्टिंगर पे जाता हूँ, स्टिंगर पे जाकर के यहाँ पे प्लान देखता हूँ। सॉरी, तो इन प्लान्स को आप देख सकते हो कि ये आपको 149 पर मंथ की होस्टिंग सर्विस पे आपको 100 वेबसाइट्स को लाइव करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, 100 GB का डाटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको एक फ्री डोमेन भी दे रहा है जिसकी वैल्यू 749 रुपीज होनी चाहिए, अंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको आप कंपेयर करके आप कोई भी एक होस्टिंग परचेज कर सकते ओके। और जैसे मैंने एक वेबिनार का लैंडिंग पेज बनाया और हैं। उसे मैं डिफरेंट रखना चाहता हूँ, अलग, अपने वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना मुझे, उसे ऐसे लॉन्च करना है मुझे ऑनलाइन, तो वो कैसे करूंगा मैं? वो उसके लिए क्या करना होगा? सेम डोमेन पे आप बनाना चाहते हो लैंडिंग पेज, यस सर। और उसके लिए आपको होस्टिंग किसी और की चाहिए। नहीं, होस्टिंग मैं AWS का ही रखूंगा, तो क्या मुझे अलग इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए? वो एक आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। वो एक सब हमारा डोमेन कैसे डोमेन क्रिएट होता होता है है, सर? एक डोमेन होता है हमारा, देन एक हमारा सब डोमेन होता है। आप जब ओके। आपका सी पैनल लॉगिन करोगे, ठीक है, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डोमेन्स का।
डोमेन्स में आप ओके जाएंगे तो डोमेन्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको सब डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। सब डोमेन पे जाकर के आप अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे webinar.xyz.com। तो जैसे मैंने अपना डोमेन लिया है GoDaddy से, तो GoDaddy में ये ऑप्शन मिलेगा मुझे? नहीं, GoDaddy में नहीं मिलेगा, सी पैनल में मिलेगा। सी पैनल एक आपको प्रोवाइड किया गया होगा, कंट्रोल पैनल होता है वेबसाइट का, वहां पे जाके आपको ये ऑप्शन ये सी पैनल गूगल पे ही सर्च करना होगा? नहीं नहीं। ये गोडेडी की वेबसाइट में रहेगा सी पैनल या अपनी? 1 सेकेंड आप दिखाता हूँ। देखिए देखिए, मैंने सी पैनल को ओपन किया है। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। डोमेन सेक्शन में गया, सर ये सी डोमेन पैनल मुझे वहां मिल जाएगा जहां से मैंने SSL सर्टिफिकेट लिया है? नहीं, आपने होस्टिंग कहाँ से परचेज करी? पोस्टिंग तो AWS से है ना? SL सर्टिफिकेट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए आप जाओगे GoDaddy पे, जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया। सर वो मैंने GoDaddy से नहीं लिया था, वो मैंने किसी और वेबसाइट से लिया था SL सर्टिफिकेट। और जिससे भी लिया हो आपने, उससे आप जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं कि आपको यहाँ पे सी पैनल के अंदर डोमेन क्रिएट करने का, सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें यहाँ पे सब डोमेन का ऑप्शन है। अब यहाँ से मैं कोई एक सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने डाला admin डॉट डॉट जीएसएल डॉट यूके, ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो है मेरा एक सब डोमेन क्रिएट हो गया। ये सेम वेबसाइट यूज करके मैं अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ? और कितने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं सर हम? देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 to 10, ओके लेकिन हर किसी का अलग अलग होगा, हर सर्विस ओके। होस्टिंग में और हमारा सर मैं सब। इसे डिलीट डिलीट भी कर सकता हूँ? जैसे मैंने एक हाँ, लैंडिंग पेज बनाया, जब उसका काम हो गया तो मैंने डिलीट कर दिया उस सब डोमेन को, फिर नया बना लिया। यस। और कोई किसी को डाउट कुछ? सर कोई लिंक शेयर कर दिए सर चैट में प्लीज। सर एक बार इंटरलिंक और परमालिंक डिफरेंस एक्सप्लेन करिए। सॉरी, इंटरलिंक एंड परमालिंक। इंटरनल लिंक एंड परमालिंक। यस सर। ओके, इंटरनल लिंकिंग बेसिकली क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के अदर पेजेस को आपस में जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। इससे स्क्रीन पे चलता हूँ।
तो जैसे कि मैं यहाँ एक पेज पे ऊपर आया, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, विद्यापीठ की वेबसाइट पे आया, यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस। आप यहाँ एक साइड में देखिए, यहाँ पे भी आपको टॉप कॉलेजेस नियर यू के ऑप्शन में कुछ कॉलेजेस के नेम दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, इंटरनल लिंकिंग। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मैं विजिट कर जाऊंगा इस कॉलेज के पेज पे। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। इट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ये सारे पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस है, आपस में लिंक है। ठीक है, तो ये आपकी ठीक है इंटरनल सर। लिंकिंग। हाँ, सेकंड आपका क्या था, परमालिंक। जी सर। परमालिंक जब आप, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया आपको, पेज क्रिएट करते टाइम मैंने वहाँ टाइप किया टाइटल में एयर फ्राइट जी। कोरियर, और वहाँ पे एक राइट साइड में आपको शो किया कि वहाँ पे यूआरएल किस तरीके से बन गया, एयर हाँ सर। हाइफन फ्राइट हाइफन कोरियर। तो वो आपका एक वो परमालिंक होता है कि आप परमालिंक कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। इसको हम स्लग भी बोलते हैं, यूआरएल का पाथ भी बोलते हैं। ओके सर। इट इज द सेम। और कुछ? नो सर, थैंक यू। ऑलराइट, Is Sir, there I any have an more doubts? Sorry, who was speaking? हेलो Yes, Yuvraj? मैम, अगर हम सर्च करते हैं सर्च इंजन पे जैसे कॉलेजेस, तो वो कीवर्ड के बेसिस पे आता है, मतलब रैंकिंग, एसईओ रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेजेस आते हैं। Yes. और अगर हम लिखते हैं सर्च कॉलेजेस नियर मी, तो मैम वो लोकेशन के बेसिस पे आता है ना? Yes, लोकेशन वाइज जो भी आपके कॉलेजेस आपके लोकेशन में होंगे वो वहाँ पे शो होता है। और मैम अगर हम लिखेंगे कॉलेजेस इन इंडिया, तो तो इंडिया वो में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे आपको दिखेंगे। मैम वो एसईओ के बेसिस पे आएंगे। हाँ जी, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं या कुछ भी आप क्वेरी सर्च करें, तो उन्होंने जो बैकएंड में एसईओ प्रोसेस पूरा करा हुआ है उसके थ्रू ही आपकी जो भी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड आपको सर्चेस मिलते हैं। ओके मैम। Yes. So, anyone have any other doubts? Okay, that's good. So you will get assignment regarding this SEO on page. So I'll just give you assignment regarding this and you have to submit it before the deadline. If anyone faces any issues or any doubts, you can just DM us. We'll reply to that. Okay. So thank you, interns. Thank you for joining today's class. Okay, ma'am. Bye. Bye. See you in next class. Yeah.